Today, in our first topic, we are discuss about the the relative address is very important to all of you. What is the relative address on all? Anyone have any idea regarding the relative address? Means you are study from the internet or something like that. Yesterday I asked you the questions. Hello. Anyone have any idea regarding relative address? Everyone is there, na? Or silent? You have any idea regarding relative address? No, sir. Yeah? Tell me, Kamal. Yes, sir. नहीं पता, sir. नहीं पता तो नहीं. मैंने तो कल बोला था तुम देखना चाहिए था Yes. सर पोजीशन सर उसका positions. Yeah, something like that. So let's start and see. Just see my copy. You can see. Say one program is written from 8100 in 8085. Say this program is written in 85008. See in 8123H memory locations, there is a instructions like JNC. Can you recall JNC in 8085? यस सर JNC जंप नॉट jump and not carry. यस सर 81 say 2B. 812B. So basically JNC 812B, this is the instructions I am written in this program. I am cart this program, total program I cart, CUT cart. Total program I cart this program and it will be pasted in 8200. Same program. Program will be executed or not? If yes, why? If no, why? Program will be executed or not? सर एग्जीक्यूट करेगा सर करेगा. यस सर Anyone else? नो सर एड्रेस चेंज हो जा रहा है सर तो उसमें कुछ कुछ डेटा चेंज करना पड़ेगा तब वो एग्जीक्यूट करेगा Exactly. ये देखो ये जो है ना 812B, ये जो 812B है इधर आने से तो 822B हो जाएगा. यस सर एड्रेस चेंज करने पे एड्रेस कुछ तो डेटा चेंज हो चेंज जाएगा. तो ये Yes, sir. एड्रेस चेंज होने का कारण इस ये जो लोकेशन है इधर जाकर काम नहीं करेगा. यस सर तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? So you know you cannot change. I cannot change. I just cut and I just paste over here. So program will be not executed as this address will be changed. The program address is 812B. Maybe this address will be 822B or Yes, sir. 852B. Where you want to change means when you change the memory location of the program, total program will be changed. So in 8085, you can say that all the program is nothing but a nothing but a memory location dependent as well as machine dependent as well as memory locations dependent. Clear? I'm repeat once again. Why memory location dependent? If any program has written in from 8100, if I cut the program and paste it in 8200, maybe in the program some instruction is like that JNC 812B. So this program will not be put as
memory locations will be changed from this to that. So how this problem, सर आपके तो बहुत सारा का कंप्यूटर है, बहुत सारा का मोबाइल भी है, ये तो सबसे बड़ा चीज है, मोबाइल तो सबका है आज के डेट में। ऐसा जो पार्टिसिपेशन है किसी का मोबाइल नहीं है, सबका मोबाइल है कि नहीं? Yes, sir. है Yes, सर। सबका मोबाइल है। तो मोबाइल में कोई भी जो प्ले स्टोर से कोई भी सॉफ्टवेयर तुम लोग डाउनलोड करते हो, तो वो सॉफ्टवेयर क्या क्या लोकेशन लिखना पड़ता है, जो ये सॉफ्टवेयर इसी प्रोग्राम इसी मेमोरी लोकेशन से चलेगा। और कंप्यूटर में जब कोई तुमको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, तो तुम क्या उसका मेमोरी लोकेशन देखते हो, जो कौन सा मेमोरी लोकेशन में एग्जीक्यूट करेगा, कौन सा मेमोरी लोकेशन में इसको इंस्टॉल करेगा? होता है, ऐसा लिखा हुआ रहता है सॉफ्टवेयर में। नो सर। No, sir. Software is nothing but a program, nothing else. Software is nothing but a program, small program. It will be doing a specific work, nothing else. So software is nothing but a program. So there is nothing is written in the software to where you are where you are installed. You can install anywhere. You can install anywhere. So how it will be done, as you know, memory location, you see in 8085 the program always in memory location dependent. जो प्रोग्राम तुम लिखे हो 8100 के लिए, वो प्रोग्राम 8200 के लिए एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो प्रोग्राम you are written for 8100, it will not be executed in 8200, or it will not be executed any other memory location especially. So how this problem will be solved? This problem will be solved using the relative address. This problem will be solved using the relative address. How? What is the relative address? Say, assuming for the timing, it is not 23. It is not a 2b. It is maybe 29. 8129. Okay. So the instruction is written in 8123 jump, that is JNC 8129, right? Yes. Sir, what are the function of program counter? Sir. सर ये कितना बाइट का इंस्ट्रक्शंस है? सर ये एक और ये तुम्हारा 3 बाइट है। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन. So next instruction written in 8126. exactly. So program counter का function क्या है? Whenever these instructions start to execute, program counter automatically set by 8126. Function of program counter is nothing but a whenever these instructions start to execute, program counter automatically set in 8126. When these instructions start to execute, program counter automatically set in 8126. I am repeat once again. When these instructions start to execute, program counter automatically set in 8126. So say, assuming for time being, for only for the 30 second, you are assuming this is a 2 byte instruction. This is a 2 byte instruction. So next instruction written in 8125. 8125. So whenever these instructions start to execute, program counter will be, अरे 2 बाइट कैसे हुआ सर? हम for Just time for being 30 second seconds. assuming. For 30 seconds only. After that I will be explained. Yes sir. Sir, so whenever these instructions start to execute, program counter will be 8125. 8125, right? So program counter का value है 8125 whenever these instructions start to execute. Is it clear to everyone? So can I proceed? Yes sir. So 8125 से हमको किधर जाना है? 8125, sorry, 8125, उसके बाद 26, 27, 28, 29, all are 81. किधर जाना है? 1, 2, 3, 4,
4 बाइट हमको जाम करना है, 4 बाइट हमको जाम करना है। देखो इधर से इधर 1, इधर से इधर 2, इधर से इधर 3, इधर से इधर 4, है ना? यस तो 4 बाइट हमको जाम करना है। तो 4 बाइट जाम करना है तो हम 8129 नहीं लिखेंगे, हम क्लियरली लिख देंगे 04H। Is it clear? I am repeat once again, JNC 04H, यस JNC 04 04H। तो क्या होगा JNC 04H में? देखो ये 4 बाइट जो जाम करना है उधर, क्योंकि हमारा प्रोग्राम काउंटर किधर था? 8125, यस जाना है किधर? 8129। तो 25 से 261, 26 to 272, 27 to 283 and 28 to 294. So you know 4 byte I want to jump over here, that's why I am written 04. So अभी ये जो इंस्ट्रक्शन हुआ JNC 04H, ये कितना बाइट का इंस्ट्रक्शन है? 04, ये 2 बाइट 2 बाइट का, क्योंकि इधर 8 बिट डेटा है। कोई इंस्ट्रक्शन में 8 बिट डेटा रहेगा तो 2 बाइट हो जाएगा ना, कोई इंस्ट्रक्शन में 16 बिट नंबर आएगा तो 3 बाइट होगा, यस कोई इंस्ट्रक्शन में 2 बिट का ये रहेगा तो दिस इज ए 2 बाइट। as you know 048 is nothing but a 2। सर या सर जब स्टार्ट हम लोग 8123 से किए तो 4 बीट आगे जाएगा तो 8123 से नहीं किए। जब हमारा 813 का इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, प्रोग्राम काउंटर का फंक्शंस क्या है? धीरे धीरे सुनो, प्रोग्राम काउंटर का फंक्शंस क्या है? व्हाट इज द पीसी? पीसी इज नथिंग बट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जब ये इंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन किधर था? 8125 Next instruction to be executed, the address of the instruction store into the PC, that is the function of program counter। जब भी ये इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली आ जाएगा 8125। Is it clear or not? यस Anyone have any doubts? सर ये तो 2 बाइट में ले रहे हैं ना सर जंप को सब, लेकिन जंप तो 3 बाइट का होता है ना, इधर कैसे हो गया? ये तो इंस्ट्रक्शन देखो ना, अभी 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन बन गया JNC 04H। 85 में नहीं होता है, माइक्रो कंट्रोलर में होता है, 8086 में होता है, हर एक प्रोसेसर में होता है। JNC 04 मतलब क्या? 8 बिट का नंबर है ना? यस सर। तो 8 बिट का नंबर मतलब 2 बाइट 2 बाइट हो गया। यस सर। Any queries? If you have, you can ask. Is it clear? Clear to everyone? You have any queries? You can ask, or can I proceed? यस सर। हम आगे जाए? यस सर। ये समझ में आया ना? यस सर। यस हम अभी इस टाइप का जाम कर रहा था इधर, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड जंप, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड जंप। हम लोग इधर जाम कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड जंप। कैन यू रिकॉल? इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड जंप। Next we coming, if we want to jump in a backward side, it's called backward side, then it will become called backward jump। Means say I am written a instruction like in 8123 we are written a instruction like JNC 81 1F, then next instruction may be written in 8125, assuming this is a 2 byte instruction for the time being। तो अभी इधर से किधर जाना है? ऊपर जाना है ना, पीछे की तरफ जाना है, क्योंकि 811F में जाना है। यस So it will be backward side, it will be that side। So whenever these instructions start to execute, program counter will be सर ये कितना जगह 8125
Whenever 8125. these instructions start to execute, program counter will be automatically 8125. Whenever these instructions start to execute, program counter automatically 8125. Okay? सर लेकिन ये 3 बाइट है ना सर, 811F में 81 में जाना है, मगर तो प्रोग्राम जाना है। काउंटर तो इधर ही रहेगा ना जब ये Yes. इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा एग्जीक्यूट करने के लिए। यस तो 8123 का जब इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेगा, whenever it start the executions, whenever it start the execution, program counter automatically 8125. So from 25, so it will be jump on 811F. So from 25 to it will be jump on 811F. So just see 811F, 8120, 21, 22, 23, 24, 24, 25. So इधर से हमको बैक में जाम करना है 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 बाइट जंप करना पीछे। सर अभी हम इस इंस्ट्रक्शन में JNC 06 लिख सकते हैं? GNC 06 यस सर। तो लिखने से कैसे पता चलेगा हमको इधर जाना है क्या उधर जाना है? इधर तो 04 लिखे थे तो इधर आ गया था, अभी 06 लिखना तो इधर जाना है क्या उधर जाना है, कैसे पता चलेगा? My question is clear to you or not? Yes, sir. If Sir, I am written JNC 06, then it will be coming on that side or coming on this side. How he Sir. can understood microcontroller? How it's understood? If I Sir, am written ऊपर- over here 06, ऊपर जाएगा सर। कैसे ऊपर जाएगा? सर 06 जब लिखेंगे तो 81 ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। 81 कैसे ले लेगा? 06 इधर लिखा था 04, देखो इस एग्जांपल में मैंने लिखा था 04, यस तो 04 मतलब इधर आ गया, 06 मतलब ऊपर चला जाएगा, ऐसा कोई हो सकता है? तो हमको लिखना है -06 फॉर द बैकवर्ड। -06 हम कैसे लिखेंगे? एनीवन हैव एनी आइडिया? सर -06 -06 कैसे लिखेंगे? सर इसको 2's बाइनरी complement, 2's complement of 06 बाइनरी में कन्वर्ट करो। ओके, यस व्हाट इज 2's complement? सर राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, पहला 1 के बाद सबका 1 कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। Yes, you can do 1's complement plus 1. But this is not a correct procedure. Correct procedure is that you see from that side, say up to this is non-zero term, so it will be unchanged 10. Up to this is a non-zero term. Definition is up to last non-zero term is unchanged. Then 0 is converted into the 1 and 1 is converted into the 0. That is the 2's complement of a number. Up to this that side, you know, this is the first non-zero term, so this 10 will be put over here. Next 1 will be as a 0, 0 will be as a 1, so 1 1 1 1. So this is F and this is 1010 सर A FA. So we'll be put it over here JNC FA. Okay, यस सर। बोलो एनी क्वेरीज है तो बोलो। अभी FA देने से कैसे पता चलेगा उसको वो फॉरवर्ड जाना है क्या बैकवर्ड जाना है? क्या क्वेश्चंस है? एनी क्वेरीज यू हैव? देखो फॉरवर्ड जंप का जो रेंज है, फॉरवर्ड जंप का जो रेंज है वो है 00 to 7F। बैकवर्ड जंप का जो रेंज है वो है 802FF।
it will be 802 ff. Forward jump range is 0027f, backward jump range is 802 ff. Is it clear? Yes. Yes, sir. So forward jump के लिए क्या होता है? 002 7 7f. Backward jump के लिए क्या होता है? 802 FF. 802 ff. देखो इसके अंदर कोई भी नंबर पकड़ो, मान के चलो 85, कौन सा रेंज में पड़ता है? ये रेंज में पड़ता है। Yes. यस सर। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, 1 0 0 0 01 01 0 1 0 1। देखो फर्स्ट बिट क्या है? 1 मतलब नेगेटिव नेगेटिव नंबर। इसके अंदर कोई भी नंबर लो, मान के चलो 7c, 7 मतलब 0 1 1 1, c मतलब 1 1 0 0। फर्स्ट बिट 0 0 मतलब पॉजिटिव नंबर. पॉजिटिव नंबर। क्लियर? Yes. So remember, forward jump range is 0027f, backward jump range is 802ff, and you know any number if you are convert, it will be get negative number, and any number it will be change as a positive number. So अभी जो प्रोग्राम हम लिखेंगे इसको हम कोई जगह में कोई भी मेमोरी लोकेशंस में कॉपी कर सकता है कि नहीं? यस सर। Yes. sir. क्योंकि मैंने जो अभी प्रोग्राम लिखूंगा ये जो होगा ये तो मेमोरी लोकेशंस नहीं होगा, क्या होगा? कितना बाइट जंप करना है वो हम लिख देंगे, तो उधर के लिए जितना बाइट होगा इधर के लिए भी उतना ही बाइट होगा। Yes, Yes. sir. So there is no problem at all. You can write the program in anywhere. You can write the program in anywhere. No issues for that. So that's the that's the advantage of this microcontroller and 80886 processor and all. All the processor follow these kind of things. This is nothing but a relative address. This is nothing but a relative address. With the relative address, so what are the range? 0027f. 127 128 actually 00 से लेकर 128 बाइट तुम जंप कर सकते हो एज ए फॉरवर्ड एंड 128 बाइट एज ए बैकवर्ड। इज इट क्लियर? Yes. इतना घर तुम फॉरवर्ड में जंप कर सकते हो, इतना घर में तुम बैकवर्ड में जंप कर सकते हो। ये छोड़ के और दो जंप होता है इधर। एक बोलता है एब्सोल्यूट जंप, ए जंप, इसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट जंप। इसका जो एड्रेस होता है 11 बिट एड्रेस। 11 बिट एड्रेस। 11 मतलब 2 to the power 11 मतलब 2 to the power 11 मतलब 20 सर 2048. Yes. sir. 2k एक्चुअली मतलब 2k इज इक्वल टू होता है 2 2 into into 10 to 2 to the 2 to power the 10, power so is equal to 2 into 1024 is equal to 2k. So 2k अंदर तुम जंप कर सकते हो, you can jump anywhere within the 2k with the help of a jump. Next another jump is there, that is called L jump. Sorry, L jump. L jump is nothing but a 16-bit address. As 16-bit address, so what will be happen? 2 to the power 2 to the 16, power 16. so 64k. तुम 64 मेमोरी लोकेशन के अंदर कोई भी जगह में तुम जंप कर सकते हो, right? Today we are coming into the jump, 3 type of jump. One is called short jump, which is basically related with the relative address. Another is absolute jump, is called a jump, which is 11-bit address, and long jump, that is L jump, which is related with a 16-bit address. Next, coming with our slide.
Just see. This is a JC relative address. What is the JC? Jump on carry. Jump on carry. If carry flag is set, then jump to the particular relative address. RADD is full form relative address. RADD is full form relative address. If carry flag is set, then jump to the particular relative address. If carry flag is set, then jump to the particular relative address. Is it clear? Yes. Next, JNC. Jump at not carry. Jump at not carry. If carry flag is reset, then jump to the particular relative address. If carry flag is reset, then jump to the particular relative address. If carry flag is reset. JB full form jump on beat. सर मैंने कल जो बीट एड्रेस पढ़ाया था ना 0027F जो बाइट एड्रेस 2022F मेमोरी लोकेशंस के अंदर है. Yes, So sir. you know JB 0022F any locations if you give, so JB beat address, if beat address is 1, then jump to the particular relative address. JNB, jump to the particular relative address if this particular bit address is not 1, means is 0. Jump at not bit, full form is jump at not bit. Jump to the particular relative address if particular bit address is 0. If particular bit address is 1 over here and over here for 0. Is it clear, these 4 instructions? Yes, sir. First is carry flag set होने से jump करेगा, second is carry flag reset होने से jump करेगा, third is bit address 1 होने से jump करेगा, and fourth one bit address 0 होने से jump करेगा. कौन सा जगह में jump करेगा? Relative address में jump करेगा. Next is nothing but a JBC, bit address comma relative address. Full form is jump on bit. If bit address is 1, then jump, and after the instruction the bit address will be cleared to 0. Means say JBC 20H, means 20H is 1, then it will be jump, and after the jump it will be, after execution of this instruction, these 20H memory locations will be becomes 0. मतलब jump भी करेगा प्लस वो जो memory locations था उसको 0 भी कर देगा. जो bit address था, bit address मतलब 0 or 1 it can be stored, right? Yes, sir. Is it clear? Any queries you have? No, sir. Okay, proceed. This is nothing but a CJNE. Is very important. CJNE and DJNZ, very useful instruction. CJNE and DJNZ. CJNE is nothing but a compare and jump if not equal. Compare and jump if not equal. किसके साथ कंपेयर करेगा? एक्यूमुलेटर के साथ एक कोई एड्रेस का कंटेंट. इसके अंदर इसके पहले हैश नहीं है, मतलब इट विल बी ट्रीटेड एज एड्रेस. इसके अंदर हैश, इसके पहले हैश है, मींस इट विल बी ट्रीटेड एज ए डेटा. एक्यूमुलेटर कंपेयर करेगा विद अ पर्टिकुलर डेटा. Yes, sir. आर रजिस्टर कंपेयर करेगा विद अ पर्टिकुलर डेटा. So this is nothing but a compare with accumulator with the content of particular memory locations. If they are not equal, then jump to the particular relative address. Is it clear? Clear to everyone? Yes, sir. Any queries you have? If you have, you can ask. CJNE and CJNE up to 3 is clear. CJNE 4. If it's clear, so explain me the fourth one. Anyone explain me the fourth one?
Explain the fourth one. सर रजिस्टर सेल में जो एड्रेस होगा सर, हाँ, उसका डेटा को सर जो मेरा हैज एन वाला जो डेटा उससे कंपेयर करेंगे, और अगर वो दोनों इक्वल नहीं होगा तो रिलेटिव एड्रेस पे जंप करेगा। content of RP act as a address, Yes, and the sir. content of that particular address with compare with the particular data given in the instruction itself. If they are not equal, then jump to the particular relative address. Next, coming into the DJNZ. Sir, in 8085, how we are make a loop? Loop कैसे चलता है? Loop कैसे काम करता है? How loop is working? How the loop will be working? सर कॉल इंस्ट्रक्शन यूज करते थे सर उसके लिए, हैं? कॉल और ना लूप एक को हम 10 कर दिया, उसको डिक्रीमेंट किया, चेक किया 0 है कि नहीं है, नहीं करते हैं हम लोग, हाँ फिर जंप कराते हैं सर उसको। जंप कराता है। तो हाँ, मान के चलो कोई भी एक रजिस्टर लिया सी, उसको हम लोग 10 कर दिया, उसको मैंने एक एक डिक्रीमेंट करेंगे, आप देखेंगे जो बहुत सारे नंबर को एडिशन मैंने किया था ना। यस तो in 8085 we are using basically two instruction. First is decrement, then checking whether 0 or not. These two instruction, you know, here is a single instruction. Here is a single instructions. What are the functions? DJNZ RN, decrement the RN by 1. Decrement the RN means RR, any register. DJNZ RN means nothing but a decrement RN by 1. And checking whether Rn is 0 or not. If Rn is not equals to 0, then jump to the particular relative address. Clear or not? यस DJNZ Rn, comma relative address is nothing but a used for decrement the content of Rn by 1 and checking whether Rn is 0 or not. If Rn is not equals to 0, then jump to the particular relative address. After decrement, the data किधर store करेगा? Rn के अंदर ही store करेगा, right? Similarly, DJNZ address, जो memory locations का address दिया हुआ रहेगा, उसको एक decrement करेगा, check करेगा whether it is 0 or not. If not equals to 0, then jump to the particular relative address. Then jump to the particular relative address. आज जो डिक्रीमेंट करके जो वैल्यू आएगा वो भी वो एड्रेस में रखेगा. Is it clear? यस Clear to everyone? Yes, sir. Huh? यस Hello. यस सर। Very good. Sir, JZ and JNZ. Sir, what are the function of JZ and what are the function of JNZ? Sir, JZ में क्या होता है? JNZ सर हम लोगों का जीरो फ्लैग है. जीरो फ्लैग नहीं है सर। PSW में हम लोग पढ़े थे जीरो फ्लैग. नो सर। तो जीरो फ्लैग नहीं है हमारा. तो जीरो फ्लैग नहीं होने से हमारा क्या प्रॉब्लम है? I cannot check the zero flag, Z flag. Yes. So here the content of accumulator will be checked. If content of accumulator is 0, then jump to the relative address. If content of accumulator is not 0, then jump to the particular relative address. If content of accumulator is 0, then jump to the particular relative address. If content of the accumulator is non-zero, then jump to the particular relative address. That is the functions. Clear? Yes, sir. Next, JMP at the rate of A plus DPTR and A jump S address A11 address means this is nothing but a jump, is nothing but a short jump, which is nothing but a relative address.
रिलेटिव एड्रेस किधर रहेगा? जो DPTR प्लस एक्यूमुलेटर करके जो मेमोरी लोकेशन होगा उस मेमोरी लोकेशन में रहेगा। ये डायरेक्टली नहीं दिया है, इनडायरेक्टली कोई मेमोरी लोकेशन में दिया है कितना दूर तक जंप करना है। नेक्स्ट, A jump is nothing but a absolute jump, is nothing but a 11-bit address. A11 means 11-bit address. L jump is nothing but a long jump. So इसका एड्रेस कितना बिट का होगा? 16 बिट का होगा जो मैंने पढ़ाया। And S jump is nothing but a short jump. Short jump is nothing but a related with a relative address. And no NOP is nothing but a no operation is used only for the delay program. It's clear? A call, full form absolute call. L call, full form long call. Call is used nothing but a for subroutine. Whenever we call the subroutine, we are using. Whenever we call the subroutine, we are using the call. Like A call, like L call, like RET, like RETI, like RET and like RETI. So A call, L call, RET and RETI. A call, L call, RET and RETI. These are the four which are used, right? Yes. Just see, this is a 11-bit address, so it will be jump maximum 2K. Relative address is a 16-bit number. Relative address is nothing but a difference between 16-bit number, whatever I discuss, forward jump and backward jump. And this is a long jump, anywhere you can jump within the 64K. Next, sir, this is a very important thing. Just see, is a very important one. Whatever I am discuss, there is an example. First, I jump from over here, JZ next. JZ next. Next where? It is in this memory location. I want to jump from this location to this location. Is it clear? Clear to everyone? I want to jump from this location to that location. Is it clear? Yes. So ये instruction कौन क्या इसका hex code क्या है? देखो इसका hex code है, इसका ये छोड़ दो, ये बाद में समझाएंगे। पहले ये कौन सा मेमोरी लोकेशन में लिखा है? 0004। Yes. 8051 में जितना जंप है सब 2 बाइट का होता है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन किधर लिखा है? 6 में। 6 से हमको किधर जंप करना है? 9। तो कितना बाइट जंप करना है? 1 2 3 बाइट जंप करना है। 3, राइट? तो 3 बाइट हमको जंप करना है, इसीलिए देखो 6003, 60 for JZ, 60 is the hex code of JZ, this 60 is hex code for JZ, and this 03 is for jump. कितना बाइट जंप करना है? 3 बाइट जंप करना है। Is it clear? Yes. Next, just see JNC over. JNC over. कौन सा मेमोरी लोकेशन में लिखा है? B में। तो प्रोग्राम काउंटर will be automatically in D. सर ओवर क्या होता है? ओवर मतलब एक वो जो स्टार देता है ना हम लोग प्रोग्राम में, वही। नेक्स्ट मतलब इधर एक लेवल दिया है। ओवर मतलब इधर से इधर जाएगा, ये इधर से इधर। इधर स्टार भी दे सकते थे, डबल स्टार दे दो, इधर डबल स्टार दे दो, वो भी चलेगा। और लिखा है ओवर, तो JNC ओवर, तो ओवर मतलब इधर जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन किधर लिखा है? 000B में। वो 0012 पे जाना। 0D में ऑटोमेटिकली प्रोग्राम काउंटर रहेगा। यस। तो D से किधर जाएगा? ओवर मतलब 12 में जाएगा। यस। D से E1, E से F2, F से 103, 10 से 114 and 11 से 125. That's why you see 05. 50 is for JNC and 05 is for over. Clear? Yes. These two jump is nothing but a forward jump. These two jump is nothing but a forward jump. Okay? Yes. Next,
coming into the backward jump. Again. Next, coming into the backward jump. Just see JNC again. JNC again. JNC again. So JNC is nothing but a 507F. 507F. So basically JNC, देखो इधर JNC के लिए कितना था? JNC के लिए कितना था? 5005. 50 हेक्स कोड. इधर JNC के लिए कितना है? JNC 50F2. 50F2 ही है. JNC अगेन मतलब इधर से जंप करेगा, किधर जाएगा? अगेन मतलब इधर अगेन 004 ये 007. 007 में जाएगा. किधर से जंप कर रहे हैं? 13 मतलब प्रोग्राम काउंटर किधर रहेगा? प्रोग्राम काउंटर 15 पे जाएगा. 15 में रहेगा, राइट? Yes. तो 15 से हमको जाना है किधर? इस पे सर 07 पे. 07. अभी कॉपी में देखो 07, 08, 09, 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, 10, 11, 12, 13, 14, 15. तो 15 से हमको जाना है 07, राइट? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sorry, 12 means C, 13 means D, and it means 14 means E. Okay, so कितना घर जंप करेगा? 14 bytes, that is E. Okay, कितना घर जंप करेगा? E. E मतलब 0E minus of 0E because you know backward. 0E का बाइनरी क्या होता है? 0000 और E का हो जाएगा 1 1 1 0. 0. So ये दो जो बीट है अनचेंज. Yes. Then One's complement. then 0 0 1 1 1 1, that is F. It will be 2. 2. Just see F2. 50 is for JNC and F2 is for backward jump. Clear? Yes. Clear to everyone? Yes. 14 14 जंप तुमको करना है बैकवर्ड साइड में. मैंने किधर से किया है? जब ये इंस्ट्रक्शन लिखा है 13 में, सो हम 15 से काउंट करेंगे क्योंकि प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली 15 में चला जाएगा. इधर से जाएगा 7 तक. 14 टाइम्स जंप करेगा. 14 टाइम्स मतलब उसका 2 कंप्लीमेंट करने से F2 आया. नेक्स्ट देखो, हेयर इज जंप. हेयर किधर जंप करेगा? हेयर इसी मतलब में एक ही लाइन में जंप करेगा. दिस इज हाँ. कॉल्ड जस्ट लाइक ए इनफाइनाइट लूप. Yes. कोई ना कोई काम देना पड़ेगा, तो काम मैंने इसको दिया, एक ही लाइन में बार बार जंप करो. तो हेयर इज जंप हेयर, ये जो हेयर इज जंप हेयर, ये जो देख रहे हो, इसका क्या फंक्शंस है? डिले करवाने का. डिले नहीं, इसको एक ही लाइन में जंप कराना है. तो कौन सा मेमोरी लोकेशन में लिखा है? 15 में. Yes sir. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन किधर है? 17. तो 17 से जाएगा 15. हाँ. देखो कॉपी में देखो 15, 16, 17. अभी 1 2 बाइट जंप करना है. Yes. मतलब 02. ओके, Yes. हमको निकालना है -02.
02 मतलब 0000 0010 10 will be unchanged, then 11 1111, that is F, that is E. E. Just see, J is for S jump 80, for here it is FE. It's clear to you? It's Yes. the example of, you know, relative address. It's a very good example of relative address. It's a very, very important one. Anyone have any queries? So you can ask. There are 4 jump, JJ next, JNC over, JNC again, and S jump here. ये जो हेक्स कोड देख रहे हो ना, जो 85 में तुम लोग क्या करते हो, एक हेक्स चार्ट है, हेक्स चार्ट से निकालते हो, है ना? Yes, sir. है कि नहीं? Yes, sir. 786 पेज का जो हेक्स चार्ट मैंने बोला था, उसको जेरॉक्स करके तुम लोग कर रहे हो। मगर ये जो हेक्स चार्ट, हेक्स कोड है, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है। हम लोग प्रोग्राम लिख देंगे, ऑटोमेटिकली हेक्स कोड जनरेट हो जाएगा। ये मैंने एंड ऑफ माय क्लास मैंने सिखाऊंगा कैसे इसका हेक्स कोड बनाता है। हेक्स कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तुमको किसी को देख के करना नहीं है। हमारे पास सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर आई हैव, आई विल बी गिवन टू यू, and you know whenever you write a program it will be automatically convert this kind of hex code, means whatever burned into the program. तुमको ये जो हम तो दिखा रहा था ना, जो नेक्स्ट ये जो 03 तुमको कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है, ये ऑटोमेटिकली 03 आ जाएगा। बट यू आर नॉट एन worker, you are an engineer, so you should be know how 03 is coming, how F2 is coming, how FE is coming, how 05 is coming. That's why I explain you each and everything. ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसको हमको कुछ करना नहीं है, प्रोग्रामर कर देगा। मगर तुमको जानकारी होना चाहिए, you know, to get the jobs and you know to teach the students and everything, you should be know how 03, how 05, how F2, how FE. So I am explain everything. So if you have any queries, you can ask. Again, I can explain. So if it is clear, so I proceed for the next. Clear to everyone? Yes. ये इसका एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने बोला अभी तक, उसके एक्सप्लेनेशन है। हम तुम लोग एक बार घर में पढ़ लेना। ये प्रोग्राम है, कॉपी में चाहो तो लिख सकते हो। ये प्रोग्राम मैंने दिया भी था वो असाइनमेंट में, देखो पहले पढ़ो प्रोग्राम में क्या बोला है करने के लिए। Yes, sir. Complete? Yes, sir. Yes, sir. What you want to do? सर एक्सटर्नल रैम में 10 गो नंबर को हमको कॉपी करना है सर, मतलब ट्रांसफर करना। किधर से किधर? और मेमोरी लिखे सर स्टार्ट होना external चाहिए। to internal. External to internal. हैं? External to internal. So memory location. Write a program in 8051 assembly to transfer 10 number in the internal RAM starting from 30H from external RAM. एक्सटर्नल रैम से तुमको इंटरनल रैम में लाना है 10 डेटा। इंटरनल रैम का एड्रेस है 30H, एक्सटर्नल रैम का एड्रेस है 8050 हैं? 8050 8050। Don't be make any kind of marks. 8050। So 8050 की डेटा तुम किसमें कॉपी करना है? इंटरनल रैम में 30H से इसका एड्रेस शुरू में। 8050 का डेटा तुमको कॉपी करना है 30H से, राइट? यस सर। तो कैसे करना है सर?
एनी आइडिया यू हैव? सर एक्सटर्नल मेमोरी बोला है, एक्सटर्नल मेमोरी के लिए हमारे पास क्या इंस्ट्रक्शंस है? कैन यू रिकॉल? मूव है, मूव, हाँ मूव एक्स इंस्ट्रक्शंस है और एक्सटर्नल के लिए मूव एक्स, राइट? सो हम लोग क्या करेंगे, देखो R0 और R1 इसके अंदर हम 30 स्टोर कर लेंगे, राइट? ये कितना बिट का एड्रेस है? 8 बिट। 8050। अच्छा 16 बिट। 16 बिट। ये स्ट्रेप एंड स्ट्रेप डीपीटीआर में ही स्टोर हो सकता है। यस। तो 8050 डीपीटीआर में स्टोर करेंगे। कितना नंबर करना है? 10। वो ये R1 छोड़ के कोई भी रजिस्टर लाइक R2, R3, R4 किसी के भी अंदर, R5 किसी के भी अंदर हम 10 ले लेंगे, राइट? इज इट क्लियर और नॉट? यस। Yes, sir. सो इस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट फर्स्ट हम एक्यूमुलेटर में लेंगे। कैसे? मूव एक्स एक्स। a comma at the rate of dptr। तो क्या होगा? डीपीटीआर में क्या था? 8050। यस। उस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट आ जाएगा एक्यूमुलेटर में। यस। अभी इसके बाद हम करेंगे मूव एट द डेट ऑफ R0, a। तो क्या होगा? एक्यूमुलेटर का डेटा चला जाएगा। R0 में क्या था? एड्रेस था, 38 था, हाँ। उसमें चला जाएगा। मतलब 8050 का कंटेंट फर्स्ट आएगा एक्यूमुलेटर में, देन एक्यूमुलेटर का कंटेंट चला जाएगा R0 का जो एक कंटेंट है उसका एड्रेस 30H में चला जाएगा। हाँ। मतलब 8050 का कंटेंट चला जाएगा 30H मेमोरी लोकेशन में, राइट? यस। यस। हमको अभी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशंस को करना है। मतलब 80 डीपीटीआर में 8051 करना है, R1 में 31 करना है। कैसे होगा? सर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। INC डीपीटीआर, यस। INC R1 होगा कि नहीं? यस सर। आप फिर से ये मूव कर सकते करेंगे। हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? DJNZ डिक्रीमेंट एंड जंप R2। ये R2 को हम चेक करेंगे 0 है कि नहीं है। 0 ना आया होगा तो फिर से मैंने इधर जंप करेंगे, इसको फिर से रिपीट कराएंगे। तो चलो स्टेप बाय स्टेप हम प्रोग्राम देखते हैं। फर्स्ट डीपीटीआर के अंदर हमको 8050 स्टोर करना है। तो कैसे करेंगे? मूव डीपीटीआर कमा हैश 8050। इज इट क्लियर और नॉट? यस। फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम इज क्लियर और नॉट? यस। Yes, sir. सेकेंड लाइन ऑफ द प्रोग्राम, ये R5 लिया मैंने, R2 लिया था, ये R5 लिया। 10 मैंने डेसिमल में लिखे थे, ये हेक्साडेसिमल में क्या होगा? 0AH। ये 0AH स्टोर किया, राइट? 0AH लिखना पड़ेगा। सर डीपीटीआर में डेटा स्टोर करने के लिए कुछ कमांड नहीं होता? डीपीटीआर में जो 8050 स्टोर किए हाँ, तो उसके लिए कुछ कमांड नहीं लिखना पड़ता है? वो तो लिखा तो मैंने, मूव डीपीटीआर कमा 8050। अच्छा हाँ ठीक। स्लाइड में देखो, स्लाइड में ना, मूव डीपीटीआर कमा हैश 8050। मतलब डीपीटीआर में के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? 8050। 8050। R5 के अंदर 0A स्टोर हो जाएगा। अभी R1 के अंदर कितना स्टोर करना पड़ेगा? R1 और R0 के अंदर R1 और R0 के अंदर 30 और 30 यस सर। internal RAM. Why sir R0 and R1? At the date of support only R0 and R1, nothing else. हाँ। At the rate of support only and R0 and R1. देखो R1 के अंदर 38 स्टोर किया, R1 के अंदर 38 स्टोर किया, राइट? यस। अभी इस मेमोरी लोकेशंस का कंटेंट एक्यूमुलेटर में आएगा। कैसे? मैंने तो दिखा दिया था। मूव एक्स यस।
A comma at the rate of dptr. यस सर, हाँ, यस सर। Yes, sir. धीरे धीरे खो जा रहे हो क्यों? नहीं सर, सर स्लाइड बार बार चेंज कर रहे हैं सर, एक बार कॉपी एक बार फिर स्लाइड। ना, कॉपी अभी नहीं देखने से भी चलेगा, कॉपी में से सब समझा दिया तुम लोग, अभी तुम लोग समझ सकते हो। तो अभी जो 8050 का कंटेंट हमको लाना पड़ेगा एक्यूमुलेटर में, यस तो क्या करना पड़ेगा? मूवेक्स मूव ए कॉमा एट द रेट ऑफ ये सर DPTR? हाँ Yes, sir. ठीक है। यस Yes, sir. नेक्स्ट सर, एक्यूमुलेटर कंटेंट किधर लेकर जाना पड़ेगा? एक्यूमुलेटर का कंटेंट अब जाएगा सर R0 में, इसमें sir. R0 में जो एड्रेस है उसमें। R0 नहीं, R1 दिया है इधर। अच्छा R1, R1 में क्या है? 30H है, हाँ तो क्या होगा? मूवेक्स एक कॉमा मूवेक्स मूवेक्स सर एट द ये रेट हो ऑफ, जाएगा, सो मूवेक्स होगा ना, मूव होगा। मूव होगा सर। मूव होगा ये तो इंटरनल है ना, मूव होगा सर। मूव एट द रेट ऑफ R1, A। R1, comma A. Move at the rate of R1, A. Any doubts you have, you can ask up to that. Is it clear? Yes, Yes. sir. इससे क्या होगा सर? कौन सा मेमोरी लोकेशन का कंटेंट किधर जाएगा? सर Sir. A का कंटेंट R1 में जाएगा। हाँ, हाँ, नहीं। ए का कंटेंट जो जाएगा 3H में चला जाएगा। 8050 का कंटेंट चला जाएगा 30H मेमोरी लोकेशन। 30H में, यस सर। 8050 का कंटेंट चला जाएगा 30H मेमोरी लोकेशंस में। 8050 का कंटेंट चला जाएगा 30H मेमोरी लोकेशंस में। Yes, sir. नेक्स्ट INC DPTR। यस सर डिक्रीमेंट So DPTR will be increased by 1. इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 सर। DPTR will be increment by 1. Very good. सर इसके बाद किसको इंक्रीमेंट करना है? ये इसको सर R0 को, R1 को, R1 को। INC R1. ओके सर, नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? फिर से मूव करना पड़ेगा। R5 को हमको डिक्रीमेंट कराना है एंड R5 को चेक करना है whether it is 0 or not. If R5 is not equals to 0, then jump back. I'm repeat once again. First R5 को चेक डिक्रीमेंट कराना है एक, क्योंकि 10 बार ये कॉपी करना है, एक बार हो चुका है तो मैंने एक घटा देंगे, तो एक घटाने से क्या आएगा? It will be 09 एंड चेक करेंगे R5 is 0 or not. नहीं 0 होगा तो इधर जंप करेंगे। चलो DJNZ। Yes, sir. So DJNZ R5 कॉमा बैक। R5 को एक डिक्रीमेंट करेगा, चेक करेगा 0 और नॉट, इधर चला जाएगा। सो ये लूप जो है कितना बार घूमेगा? सर 5 बार 10 बार घूमेगा, 10 बार 0 10 बार हाँ 10 बार घूमेगा एंड 10 नंबर जो है वो चला जाएगा 8050 से लेकर 30H तक। 8050 से लेकर 30H तक, राइट? यस Sir. And the last line of the every program we are written over here. Here is jump here. In 8085 we are written halt, but over here we are written here is jump here. Okay, Yes, sir. infinity loop. Next, these are the some denotions which are you are using. These numeric denotions we are using for the written something like org is from originating. Every program should be starting with org 0000h. It means that org means originating. Program is starting from 0000h. Every program we are starting with the first line org 0000h. It means program will be starting, means originate from 0000h. Yes, Is it sir. clear? Org Yes, यस equate
Equate is, you can use equate in very 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 virtual operations is there, like count equate 25. count equate 25 मीन्स जिधर हम प्रोग्राम में ये देखो इधर हम यूज किया है मूव r3 हैश काउंट। ये सी के अंदर, सी के पहले मैंने 0 नहीं लिखा है क्योंकि सी इज ए हियर, सी इज ए कैरेक्टर नॉट ए नंबर। Here C is not a number, C is a character. So ये instructions के बाद R3 के अंदर 25 ही स्टोर होगा। जिधर जिधर हम लोग काउंट यूज करेंगे उधर उधर 25 स्टोर होते जाएगा, क्योंकि मैंने पहले लिख दिया काउंट इक्वल 25, मतलब काउंट जिधर यूज करेंगे 25 यूज होगा। Clear? Yes, sir. Clear to everyone? Yes. And end is used for ending of any kind of data, like any lookup table. For ending we are using a end instruction, end. For a lookup table ending and something like that, we are any source file ending, we are using the end data. Some another thing is that DB is for data byte. It's used to several kind of things. Say org full form Originating. It's starting from 500. It's starting from 500 and DB28. What does it mean, DB28? So data byte will be Just see, after 28 any H, anything is written. No, sir. So it will be act as a decimal. It will be act as a decimal number. So corresponding hexadecimal, 28 का hexadecimal कितना होता है? 16 subtract करो, कितना आएगा? 12. 12 मतलब C, and 16 subtract किया मतलब 16 into how much? 1. 1 coming here as a carry. तो 28 को hexadecimal में convert करो, मिलेगा 1C. So 1C को मैंने क्या करेंगे? Store होगा 500H में. Always data will be stored in a hexadecimal, but I can give in a various format, like this is a decimal format, like this is a binary format, this is a hexadecimal format, and this is a ASCII format. We can give in different kind of format the data. If not mention anything, it will be act as a decimal number. If B is mentioning, so it will be act as a binary number. If H is mentioned, so it will be act as a hexadecimal number. But in microcontroller, always save corresponding hex value. Microcontroller always save corresponding hex value. Like 28H हम देने से क्या सेव करेगा? 1C सेव करेगा. ये बाइनरी नंबर मैंने दिया था, वो कितना सेव करेगा? 35. देखो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, 301015. तो 35 को स्टोर करेगा नेक्स्ट मेमोरी लोकेशंस में. उसके बाद नेक्स्ट मेमोरी लोकेशंस में क्या स्टोर होगा? 39H. So 500 में स्टोर होगा 28, 501 में स्टोर होगा 35H, 502 में स्टोर होगा 39H. Next, another starting from 510H. Clear up to that? Yes, sir. yes, sir. तो इसका हम लोग देता है ASCII कोड. ए डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब इसका ए है ASCII कोड. ASCII कोड में हम लोग डेटा दे सकते हैं. तो ऐसे करके कोई भी डेटा हम लोग दे सकते हैं. This is the help of the data format. सर हाँ बोलो. सर यहाँ ओरिजिनेट तो हम लोग एक ही बार करते हैं ना, तो यहाँ पर इसकी कोड के ऊपर भी एक बार ओरिजिनेट तुम इधर मैंने दिखाया और एक एग्जांपल, जो एक ओरिजिनेट तुम 510 से भी कर सकते हो. तुम एक बार करो, 10 बार करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रोग्राम के लिए तुम ओरिजिनेट एक बार करोगे, अलग अलग टेबल के लिए अलग अलग तुम ओरिजिनेट कर सकते हो. एक प्रोग्राम में कहीं भी कितना भी ओरिजिनेट हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मगर तुमको ओरिजिनेट एड्रेस लिखना पड़ेगा, उसी मेमोरी लोकेशन से वो डेटा स्टोर होगा. क्लियर? यस सर. How to write a program? Just read the 4 points. Very important one. One instruction appear per line.
Level means over, next, whatever you written, which gives a name to memory location. Start in the first column. मैंने जो प्रोग्राम मैंने तुम लोग आज दिखाया, देखो एक एक लाइन में एक एक इंस्ट्रक्शंस है, और ये जिसको बोलता है लेवल, again, over, next, here, all are written in the first column and program will be written in the second column. Instruction must start in the second column of the अच्छा second column में instruction होगा. Comments run from the, तुम चाहते हो तो comments भी लिख सकते हो end of the line. देखो इसका एग्जांपल दिया है, ऐसे ऐसे करके प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. मूव ए कॉमा हैश, मैंने एक एक लाइन में एक चीज लिखना पड़ेगा, तो तुम लोग जानते ही हो. सर हाँ बोलो. सर उस पेज पे जाइए सर, यहाँ पे मूव EX मूव है. मूव EX क्या है सर यहाँ पे? एग्जांपल एक्स একটা মুভের একটা एग्जांपल দেখিয়েছে. मूव ए कॉमा हैश 55, एक ही लाइन में एक ही चीज लिखा है. मूव R0 कॉमा ए, एक्यूमुलेटर में देखो 50 R0 में 55 स्टोर किया ऐसे करके. ये ऐड का एक एग्जांपल देखा है, ऐड एग्जांपल. क्लियर? Next we are coming into the delay program. Delay is a very very important one. That is another important things. Delay, there are 3 delay program. You just see what are the functions. First, move R0 comma hash FFH, and here DJNZ R0 comma here. What is the function? So data of FFH will be stored. Obviously इसमें गलत है. इसमें क्या गलत है बोलो तो? FFH नहीं होगा. हैं? FFF होगा, 0 FFH होगा, राइट? जो भी है. तो R0 में कितना स्टोर होगा? FFH. R0 में FFH स्टोर होगा, और ये R0 को एक घटाएगा और चेक करेगा R0 1 और not. If R0 is not equals to 0, then jump in the same line. So ये लाइन कितना बार रिपीट करेगा बोलो तो? तो 2 बार, एक बार 0 और एक बार 1 के लिए. ना 255 मतलब FF टाइम ये रिपीट करेगा. FF तो सर कितना होता है? बोलो. ठीक है सर, ठीक है. इसमें हम 0A देने से कितना, 05 देने से कितना होता था? 5 बार. 5 बार रिपीट करता था. एक बार 5 से 4 होगा, 4 से 3 होगा, 3 से 2 होगा, 2 से 1, 1 से 0, पूरा 5 बार रिपीट करेगा. इसमें FF दिया मतलब FF टाइम्स रिपीट करेगा. So एक के लिए ये 2 लगता है, 2 मशीन साइकिल लगता है, और इसके लिए 1 मशीन साइकिल लगता है. ठीक है? तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कितना मशीन साइकिल लगेगा? 3 into 5 15. अब सर 5 बार लूप चलेगा ना? अच्छा 255 255 into 3. Sir, 2 into 255 plus 1. Very good. 2 into 255, it's for this line only. 255 into 2 for this line only, right? Yes, sir. For this line, another one. So 255 into 2 plus 1, right? Yes, sir.
So how many machine cycle required? 255 into 511. 500 11. 511, right? सर ऊपर वाला का एक ही क्यों हुआ सर? वो एक ही बार होगा तो 255 टाइम्स तो ये बार एक घूमेगा ना। सर तो जैसे ये डीजे एनजेड बार बार इस फर्स्ट वाले लाइन पे जंप कराएगा तो फिर से तो ये चेक करेगा ना सर? इस लाइन में कैसे जंप करेगा? जंप तो इसी में करेगा ना, हेयर इस जंप हेयर, इसी लाइन में तो जंप करेगा, वो तो ऊपर में जाएगा ही नहीं। अच्छा हाँ ठीक है। ऊपर में कैसे जाएगा? ऊपर में तो जाएगा ही नहीं, और ऊपर जाने से प्रोग्राम भी गलत है, ये तो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। हर एक बार जाएगा और हर एक बार इसके अंदर एफ स्टोर कर देगा, तो क्या तो कभी तो खत्म ही नहीं होगा प्रोग्राम। हाँ सर हाँ ठीक है। सिर्फ इस लाइन जो है उतना बार घूमेगा। तो पेन एंड पेपर निकालो, अभी लिखो डिले टाइम रिक्वायर्ड फॉर द क्वेश्चन 1 और डिले प्रोग्राम 1। Yes. अभी लिखो, उसके साथ ही लिखो assuming that crystal frequency is 11.0592 megahertz. Assuming that crystal frequency is 11.0592 megahertz. 11.05. Complete? Yes, sir. Next लिखो machine cycle required for hair loop. Hair loop. Machine cycle required for hair loop. Machine cycle required for hair loop. Machine cycle required for hair loop means for this line only. Sir, कितना लगेगा? 2 into 255 plus 1. No. For this line only हम बोलती तो. 255 into 2. 255 into 2. 510. 510 is equal to 510. 255 into 2 is equal to 510. नीचे में लिखो therefore machine cycle required for total program 510 plus 1 for this line only is equal to 511. Very good. अभी लिखो T state required to execute the above program. T state required to execute the above program. Yes, sir. T state required to execute the above program is equal to सर 12 टी स्टेट होता है सर इसमें। हर एक मशीन साइकिल में 12 होता है एग्जैक्टली। सो 511 into 12 मल्टीप्लाई करना नहीं है। 511 into 12. फाइव 511 into 12 कंप्लीट। Yes, sir. अभी लिखो टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट 1 T state. Time required to execute 1 T state Yes, sir. is equal to 1 by 11.0592 megahertz. नीचे मेगाहर्ट्ज होगा 1 Yes, by 11.0592 megahertz. माइक्रोसेकंड में आ गया। हैं? माइक्रोसेकंड में सर आंसर आ गया। उसके बाद इज इक्वल टू 1.083 माइक्रोसेकंड। 1.083 माइक्रोसेकंड
Yes, sir. Now 1.083 ना 085 होगा 1.085 microsecond. Okay. Yes. Yes, sir. Next, write down. Therefore, to execute program 1, time required is equal to क्या होगा sir? Sir, 511 into 12 into 1.08 microsecond. Yes. To execute the Program time required. अच्छा मैंने क्या बोला गलत बोला टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट 1 टी स्टेट बोला 1 t state, हाँ सर. ना 1 मशीन साइकिल होगा हाँ हाँ सर. टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट 1 मशीन साइकिल इज इक्वल टू 12 by 11.0592. Yes, sir. 1 point something. होगा 12 by for 1 machine cycle 11 point क्या बोला 0592. 0592 is equal to 1.085 microsecond. Okay. आंसर सही था. हाँ आंसर सही था. So basically you can 1.085 तो क्या लिखा लास्ट में टू एग्जीक्यूट द अबव प्रोग्राम टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 511 into 1.085 511 into 1.085 is equal to 1.085 microsecond. 511 into 1.085 microsecond. Complete. Yes. Next, program 2. सर मान के चलो Yes, sir. ये जो मान के चलो ये इंस्ट्रक्शंस एंड ये नहीं लिखा है तो ये प्रोग्राम जस्ट लाइक ए सिमिलर टू दैट प्रोग्राम ना Yes, sir. Yes, sir. कौन सा नहीं लिखा है फर्स्ट लाइन लिखा नहीं है लास्ट लाइन नहीं लिखा है और इधर हेयर वन नहीं लिखा हुआ है तो ये प्रोग्राम इसके तरफ ना एकदम पूरा Yes, sir. ये प्रोग्राम लूप के अंदर लूप है तो क्या होगा पहले इसका तुम लोग निकाल लो ये कितना मशीन साइकिल लगेगा ये 200 क्या 200 3 डिजिट का कैसे लिख दिया 300 तो 200 तो नहीं होगा 200 होगा नहीं सर. No, sir. 100% होगा सर हेक्साडेसिमल में. ये देखो इसके बाद कुछ लिखा है एच Decimal. नहीं. डेसिमल वैल्यू तो 255 तक हो ही सकता है क्योंकि FF 255 है ना Yes, sir. तो इसलिए 200 इज पॉसिबल 200 नो प्रॉब्लम एट ऑल Yes, sir.
So tell me, what are the machine cycle required to execute this? बोलो, इसके लिए कितना लगेगा? सर 200 into 2. हाँ? 200 into 2. 200 into 2. 2. So 200 into 2, right? इसके लिए कितना लगेगा? 1. 1. So total कितना लगेगा? 401. 401. 1. पहले लिखो machine cycle required for hair loop. Machine cycle required for hair loop. 200 into 2 is equal to 400. Right? Yes, sir. अभी देखो, मान के चलो ये नहीं है, ऊपर वाला लाइन छोड़ दो। अभी ये क्या काम करेगा? R0 will be decremented by 1. R0 जो भी है एक डिक्रीमेंट करेगा, किधर जाम करेगा? इधर। Yes, sir. इधर जाम करने से R1 में क्या स्टोर होगा? 200. अगेन 200. 200. हाँ. अगेन 200 स्टोर होगा। ये अगेन ये जो लाइन है कितना बार घूमेगा? 200 times. 200 टाइम्स। वेरी गुड। सो ये एक बार घूमने से ये 200 बार घूमेगा, ये एक बार घूमेगा। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, ये sir. एक बार घूमने से ये 200 टाइम्स घूमेगा, ये 1 टाइम्स घूमेगा। Yes, sir. तो टोटल इसके लिए एक बार इसको घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा? कितना मशीन साइकिल लगेगा? इसके लिए 1, इसके लिए 400. 400. इसके लिए 1. 1. नो 2। 2. Sir, why 2? एक एक बार के लिए दो मशीन साइकिल लगता है ना? Yes, yes, sir. हाँ. इसके Yes, लिए sir. 400 बोल रहे हो तो इसके लिए तो 2 ही बोलना पड़ेगा ना? Yes, sir. Yes, yes, sir. 2. इसके लिए 1, इसके लिए 400, इसके लिए 2। So write down machine cycle required for 1 time here 1 loop. Machine cycle required for 1 time here 1 loop 1 time. 2. is equal to 2. 1 plus 1 within a first bracket 200 200 into 2 into 2 plus 2. plus 2 is equal to 1 plus 400 plus 2, that is 403. Yes, sir. सर R0 का वैल्यू कितना है? अभी चलता है ऊपर में। R0 का वैल्यू कितना है? 255. 255। चलो ये लूप कितना बार घूमेगा? हेयर 1 लूप Here 1 loop, sir. Sir, एक बार. कितना बार घूमेगा? बोलो। 255 बार. 255 times. क्योंकि R0 का जो वैल्यू है उतना बार ही ना घूमेगा। Yes, R0 sir. डिक्रीमेंट किसको कर रहा है? R0 को। Yes, sir. So R0 will be decremented by 1, so it will be, rotate. Stop. Please mute your microphone so it will be better to others. Whenever you speak, you will be unmute. So 255 times ये पूरा लूप घूमेगा. So write down machine cycle required for total here 1 loop. Machine cycle required for total here 1 loop is equal to क्या कितना आया था पहले? 403 आया था। देखो Yes, sir. Yes, sir. 403. 403 into 255. Sir, into. बोलो
403 into 255 इंटू 255, एक एक बार के लिए 403 लगता है। अच्छा घूमेगा 80 में कितना है 255, घूमेगा 255 टाइम्स, तो 403 इंटू 255 होगा ना। एक एक बार के लिए 403, 255 बार घूमने के लिए 255 इंटू 403, 255 इंटू 403 और 403 into 255, whatever you say. So machine cycle required for total hair one loop is equal to 403 into 255. And lastly you write down machine cycle required for total program. क्या होगा सर? Sir, 403 into 255 plus 403. No. Sir, plus 255. No sir, no. Then sir, टोटल प्रोग्राम के लिए 255 और इधर सर देखो मैंने इतना दूर तक बोल दिया है। oh yes sir. इतना के लिए तो मैंने बोल दिया। तो 1, तो उसके लिए तो 1 प्लस हो जाएगा। 403 into 255 plus 1. So write down machine cycle required for total program is equal to 403 into 255 into 255 plus 1. Okay. Yes sir. Machine cycle required. Machine cycle तो हो गया, machine cycle तो हो गया. Time required to execute the above program is equal to 403 into 255 plus 1 into 1.085 into 1.085. कितना होगा देखो, निकल के रखो, इसको जरूरत है। Sir, please indicate hair 1 and hair 2. हाँ? Hair 1 और hair 2 को indicate कर दीजिए किधर है। Hair 1 और hair 2 मतलब वो किस लाइन में जंप करेगा, हेयर कहाँ पे है? ये तो हेयर तो इधर है DJNZ में, और Sir, हेयर वो 1 है थर्ड वाले का पूछ रहा। हाँ, कौन सा वाला प्रोग्राम बोल रहे हो? ये वाला थर्ड वाला। यस सर। समझ में नहीं आ रहा है। ये वाला सर, प्रोग्राम के बारे में बोल रहे हो क्या? ये वाला प्रोग्राम के लिए बोल रहे हो? सर जो आप नोटबुक में लिख रहे हैं। नोटबुक में लिख रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं, मैंने तुमको तो बोला नहीं, वो नेक्स्ट पढ़ाएंगे इसके लिए लिख रहे हैं। अच्छा सॉरी। तुमको जो बोल रहे हो वो करो। कितना आएगा? कैलकुलेट करके निकालो। 403 into 255 plus 1 into 1.085. 1.085.
कंप्लीट? नो सर। कितना है कैलकुलेशन करके? सर 98383.46। फोर 6 माइक्रो सेकेंड और मिली सेकेंड और क्या? सर माइक्रो। माइक्रो सेकेंड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रोग्राम को मैंने कॉपी में भी लिखा है, ठीक है, और नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं हाईलाइट भी किया है। पहले तुम सोचो, रेड हाईलाइट को हम छोड़ देंगे तो प्रोग्राम जस्ट लाइक ए प्रोग्राम नंबर 2 राइट। और ये जो कलर, ये जो आरेख, जो जितना सारा हाईलाइट है सबको मैंने एलिमिनेट कर देंगे तो प्रोग्राम जस्ट लाइक ए प्रोग्राम नंबर 1। प्रोग्राम नंबर 1। इज इट क्लियर? यस सर। सो एक प्रोग्राम था, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम आया तो और एक लूप आया, तीसरा प्रोग्राम आया तो और एक लूप आया। इज इट क्लियर? लूप के अंदर लूप, उसके अंदर लूप। सो देखो, अभी मान के चलो जो हाईलाइट पोर्शन नहीं है उसके बारे में सोचो, राइट? यस सर। ये जो हेयर, अभी कॉपी में देखो, इधर एफएफ लिखा हुआ था, मैंने उसके चलते 255 लिखा है। ये समझ में आया ना? यस सर। मैंने एच नहीं लिखा। सो ये आर डेसिमल नंबर। सो इसके लिए कितना टाइम्स घूमेगा सिर्फ ये लाइन के लिए? अभी मान के चलो जो हाईलाइट पोर्शन है वो नहीं है, मतलब ये दो लाइन नहीं है, ये दो लाइन नहीं है, इसके लिए कितना बार घूमेगा? 255 into 2 + 1। कितना मशीन साइकिल लगेगा? यस सर। पूरा प्रोग्राम के लिए लगेगा, इन दोनों लाइन के लिए +1, राइट? यस सर। सो लिखो, machine cycle required for here loop यस सर। machine cycle required for here loop is equal to, sorry, 255 into 2. यस सर। Machine cycle required for here loop 255 into 2 is equal to 510. Okay? सर +1 नहीं होगा ना, ओनली फॉर हेयर लूप बोला था मैंने, ये सिर्फ इस लाइन के लिए, सिर्फ इस लाइन के लिए। सिर्फ मैंने इस लाइन के लिए बोला है। यस सर। कितना होगा? ओनली 510, राइट? यस सर। Machine cycle required for here one loop. Machine cycle required for one time here one loop. देखो रेड मार्क किया मैंने। One time here. Machine cycle required for One time here. one time here one loop. तो क्या होगा सर? इसके लिए कितना?
1 इसके लिए कितना? सर इसके लिए 510 510 हाँ अभी तो किया ना हियर यस सर 255 into 2 510 इसके लिए 1 इसके लिए 2 so 1 plus 510 plus 2 513 is equal to 1 plus 510 into 510 plus 2. Machine cycle require for total here one loop. Machine cycle require for total here one loop. R1 का वैल्यू कितना है? 255 तो ये 255 टाइम्स घूमेगा. Square foot total. ये 255 टाइम्स घूमेगा, राइट? Yes sir. यस सर तो 255 टाइम्स घूमेगा तो क्या होगा इसको? 513 513 into 255. 513 into 255, right? Is equal to 513 into 255. Yeah. Okay. Next, machine cycle require for one time here to loop. Yes sir. One time here to loop. सर हेयर इसके लिए कितना लगे थे सर? इसके लिए कितना लगे थे? 513. 5 1 3 into 255. 255 यही तो लगे थे टोटल. Yes, Yes. sir. अभी इसके लिए क्या लगेगा सर? इधर से इधर बोला. इसके लिए 1, इस टोटल के लिए इतना प्लस इसके लिए 2 एग्जैक्टली. तो लिखो machine cycle required for here to loop is equal to 1 plus within a first bracket 513 into 255 plus 2. Machine cycle required for 1 plus within a first bracket 513 into 255 513 into 255 first bracket close plus 2. क्यों सर? इसके लिए 1 Yes sir. एंड इसके लिए 2. 2. तो इसको मैंने पूरा ऐड किया 1 plus 513 into 255 plus 2, राइट? Yes. अभी R0 का वैल्यू कितना है? R0 का वैल्यू सर 255 255. FF मतलब 255. तो 255 R0 का वैल्यू है तो ये लूप भी 255 टाइम्स घूमेगा. यस Yes, sir. तो machine cycle required for here to loop. Machine cycle required for total here to loop. Machine cycle required for total here to loop. Yes sir. Total into. क्या होगा? 1 plus 513 into 255 plus 2 total into 255. Total into 255. यस सर. Machine cycle required for total program. प्लस क्या 1 होगा? हो जाएगा उसमें. हैं? जो अभी आया उसमें +1 हो जाएगा. Very good, very good.
जो आया उसके साथ इसके लिए +1 हो जाएगा, इसके लिए Yes, सिर्फ sir. इसके लिए +1 हो जाएगा। Machine cycle required for total program is equal to 1 + 513। तो जो आया टोटल मैंने एक बार कॉपी में लिख देता हूं, 1 + 513 into 255 first bracket +2 into 255 +1, ये आएगा टोटल। क्लियर? Yes, sir. And you know time required to execute the above program is equal to into 12 into total into 1.085 Yes. 1.085 microsecond, total into 1.085 microsecond, right? Within a Yes, sir. third bracket, then into 1.085 microsecond. नेक्स्ट दिन इसका कितना टाइम हुआ, इसका कितना टाइम हुआ, इसका कितना टाइम हुआ, एकदम रेडी करके आना। तो इसके ऊपर हमको कुछ बोलना है, तुमको पता चलेगा कौन सा लूप कौन सा टाइम में यूज करना है। क्लियर? Yes, sir. वाओ, हमको क्लियर नहीं हुआ, तुम लोगों को क्लियर हो गया। आप अच्छा पढ़ाते हैं ना सर। अरे क्या देते हैं भाई, गिर जाएंगे, पूरा धीरे धीरे दो। अच्छा, कल क्लास होगा ना? सर रूटीन में कल नहीं हैं? रूटीन में 24 अरे रूटीन शेड्यूल सब छोड़ो, तो सब हमारा उतना अच्छा नहीं हाँ है। सर, होगा सर, होगा सर, होगा 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 सर। सर, होगा सर, होगा। ठीक है, सैटरडे नहीं होगा, कल होगा। सर देखिए हम लोग यस सर बोल रहे हैं यस क्लास सर, के यस लिए। सर। पढ़ने के लिए। वाह, तो थैंक यू। तो कल हम लोग वही एक ही टाइम में करेंगे 11:15 में। यस कल के बाद सैटरडे नहीं होगा, संडे नहीं होगा, 2 दिन छुट्टी, उसके बाद फिर मंडे। ओके सर। ठीक है, किसी के साथ कोई क्लास एडजस्ट करना है तो कर लेना, ठीक है नहीं हाँ, सर, ठीक है सर। ना? कोई फैकल्टी के साथ क्लास एडजस्ट हाँ, करना हाँ। पड़ेगा ठीक है सर, बोल देंगे ग्रुप में। तो कर लेना। हम कल लेंगे, परसों और संडे हम नहीं लेंगे, तो सर लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। कुछ समझ में आया? यस सर। यस अरे सर। बाबा, हमको समझ में नहीं आया, तुम लोग को आ गया। चलो, पढ़ाई करो बढ़िया से, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। यस सर। पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट सेमेस्टर होगा तो हैं? पढ़ाई तो कर लेंगे सर, सेमेस्टर ही नहीं होगा तो फायदा। सेमिस्टर होगा, टेंशन मत लो, सेमिस्टर तो होना ही पड़ेगा। सेमिस्टर नहीं होगा जाएगा किधर, है कि नहीं? यस सर। यस सर। सेमिस्टर तो आज ना तो कल होना पड़ेगा। अरे क्या अभिषेक पांडे, सर मेरा म्यूट है, हम नहीं बोले ना, मेरा आवाज आया। हम इधर देख पाते हैं अभिषेक, किसी का भी होने से ना तुम भी देख पाओगे, ये कोई बात नहीं है। तुम ये में जाओ, पार्टिसिपेशन में जाओ, देखो हमारा अभी जो सर मैं माइक्रोफोन है देख ना। पाता हूँ, लेकिन उस टाइम मेरा नहीं आया था। अच्छा, जो उस भी है, टाइम मेरा आवाज नहीं था। अच्छा ठीक है, हाँ, शायद उस समय म्यूट था मेरा। मशीन फेल कर गया।
ये ऑनलाइन क्लास होने के बाद ना कुछ कुछ नाम हमको पता चल गया। मैं जिंदगी में कभी स्टूडेंट का नाम पता नहीं कर पाता हूँ, मगर ऑनलाइन क्लास की वजह से हो गया। सर बार बार फ्लैश होता है ना। हाँ, मैं तो वीडियो तुम लोगों को देख रहा हूँ, जो जो डाउट है इसको और एक बार देख लो। यस सर। मैं तुम लोग के लिए ही दे रहा हूँ वो ये मैं यूट्यूब में, सो दैट यू कैन ना यू इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन जस्टिफाइड। रात में सोने का टाइम एक बार देख लेना। यस सर। मम्मी का मोबाइल रहे क्या डैडी का मोबाइल रहे जिसमें इंटरनेट है, उससे एक बार देख लेना। तो क्या होगा ना, तुम वो मतलब पूरा कैप्चर्ड हो जाएगा। एक बार हम पढ़ाया, उसके बाद रात में एक बार देख लिया तो पूरा तुम एकदम कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक दिन आदत डाल लो, जो रात सोने का टाइम आधा घंटा 1 घंटा हम एक बार देख लेंगे क्या क्या पढ़ाया है। यस इसीलिए सर। मैंने यूट्यूब में दे देता है, ये कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर कल मिलेंगे हम लोग, ओके। जिंदा रहेंगे तो। अभी रहेंगे सर, 29 अप्रैल का डेट है। हैं? हमारा जाने का 29 अप्रैल का डेट है हम नहीं लोग सर, कब दुनिया जाते हैं? खत्म होने का सर। ना, वो तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, बोल दिया वो गलत। फिर भी जो चांसेस है सर वो 29 के लिए है, कल का कोई चांस नहीं है। अच्छा, ना एक कोरोना के लिए कोरोना के लिए नो डेट सर। तो कभी भी जा सकता है, इसीलिए तो बोल रहा है। जिंदा रहेंगे तो कल मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय, Thank you, sir. बढ़िया से थैंक रहो, यू सर। सब सावधानी से रहो। यस सर। Yes.